Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I will discuss the single and multi-mode fiber. I will cover only the most important points of single and multi-mode fiber from which you can solve all the UPSC prelims questions. So let's get started. Optical fiber is divided into a two-part multi-mode fiber and a single-mode fiber. By the name, you can clarify that in a multi-mode fibers, different types of mode can propagate in optical communication, but in a single-mode fiber, only one mode propagate in optical fiber. Only one mode propagates in a single mode fiber, but in a multi-mode, there are many modes propagate in multi-mode fibers. So refractive index varies due to the variation in the composition of core material, which gives two type of optical fiber: step index fiber and a graded index fiber. In the next slide I will explain with the diagram. Again, in a single mode fiber, there are two types, step index and a graded index, but in a single mode fiber, mainly use of step index fiber has been done, so we use only step index fiber, though there are two possibilities, step index and graded index, but we used to prefer step index fiber only. So refractive index of the core is uniform and undergoes an abrupt change at the core cladding interface, that is step index single mode fiber. Single mode fiber tend to have a lower losses and produces less distortion than multi-mode fiber. UPSC mostly asks the comparison between the multi-mode fiber and the single mode fiber. So if we compare the multi-mode and a single mode, then single mode has a lower losses. Keep in mind that the single mode has a lower losses and produces less distortion than multi-mode fiber, and mostly companies prefer single mode fibers. Now, if we use the core size, there is core and there is a cladding. If we discuss the core and cladding size, that is important, that can be asked in any of the options. What are the core and cladding sizes? So in a multi-mode core size will be large. In a multi-mode core size will be large. And in the single mode, because in a single mode only one funda mode will be supported by the optical communication, so in the single mode core size is 8 to 10 micrometer. But in a multi-mode, the core size is large, like 50 micrometer and 100 micrometer. Same as in multi-mode graded index fiber, 50 micrometer, 62.5, 85 and 100 micrometer. But if we compare with the single mode fiber, the core dimension or core size is very less. Performance advantage for a single mode graded index fiber compared to single mode step index fiber is relatively small. So single mode fiber production is almost exclusively step index fiber. That I said in the last slide, that if we talk about the single mode fiber, then we will talk only about the single mode step index fiber. But in a multi mode, we will consider both the cases, step index fiber as well as graded index fiber. So let's begin with the multi-mode step index fiber. This is multi-mode. Here you can see the core size is large. And if we talk about the step index का सिर्फ इतना मतलब होता है जो कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें अब्रप्टली चेंजेस आ रहे हैं, यानी यहाँ पर N1 है तो अब्रप्टली वहाँ पर N2 चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आप देखेंगे तो जब आपका जो रेडियस है वो आपका ए इज द रेडियस ऑफ द कोर, अगर आपका आर जो है वो आपका ए से कम है, यानी आप कोर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। बट अगर आपका जो रेडियस है वो ए से ज़्यादा हो जाता है, यानी बी के आप पैरामीटर यानी क्लैडिंग के रेडियस के पैरामीटर में आते हैं, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 हो जाता है। एंड यहाँ पर आपका ये डेल्टा का फॉर्मूला है N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अपॉन 2 N1 स्क्वायर। न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, याद रखिएगा। स्टेप इंडेक्स का मतलब है अब्रप्टली चेंज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ step index multi-mode fiber. These characteristics are very important. Many of the question has been asked from these characteristics. First is it support a large number of modes for propagation because it has a large core diameter, as you have seen in a diagram. Large core, so large number of modes. Number of modes that multi-mode step index fiber propagate depend on the delta wavelength of transmitted light and the core radius of the fiber. A large core size and a large numerical apertures make it easier to couple light from LED into the fiber.
Clear? Multi-mode step index fiber have a limited bandwidth capabilities. Although multi-mode step index fiber has all the good possibility, like it supports many modes, but it has a limited bandwidth. Keep in mind, this question has been asked that the multi-mode step index has a limited bandwidth. It is least expensive among all the three of the fiber. Dispersion is high. Why dispersion is high? Because suppose यहाँ से आपकी बहुत सारी waves जा रही हैं, यहाँ से आपकी बहुत सारी वेव्स अंदर जा रही हैं, कोई आपकी वेव पहले पहुँचेगी, मान लीजिए यहाँ से दूसरी वेव गई, ये कोई वेव आपकी जब ये एग्जिट पर पहुँच रही है, रिसीवर के साइड पे पहुँच रही है, तो कोई पहले पहुँच रहा है, कोई बाद में पहुँच रहा है. सपोज़ आपको इस तरीके से समझाते हुए, एक वेव ऐसे पहुँची, दूसरी वेव चली है, तो दूसरी वेव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू, ये सपोज़ आपका एंडिंग पॉइंट है, ये इस टाइम पहुँची. एंड अब अगर हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड भी चल रही है, तो थर्ड यहाँ पे पहुँची. तो ब्लू, ग्रीन एंड पिंक यू कैन सी कि अलग अलग टाइम पे पहुँचती है, तो इसकी वजह से हमारा बेसिकली डिस्पर्जन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं मॉडल डिस्पर्जन. तो जो आपका डिस्पर्जन होता है वो आपका मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में हाई होता है. ट्रांसमिशन डेटा रेट आपका लो होता है एंड कोर डायमेंशन जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा होता है. इस वजह से ये ईजी टू फैब्रिकेट है. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आई हैव समराइज्ड ऑल द points, so you have to keep in your mind that the fabrication is easy, core dimension is high, and the transmission data rate is low, and the dispersion is high. Now we will talk about the multi-mode graded index fiber. Here you can see that the refractive index is not changing abruptly, it changing gradually. Like you have seen that if you are covering a distance from the axis, then you have seen that the refractive index is changing gradually. That's why it is called the graded index fiber. Here is the formula of the graded index fiber. Standard core size for multi-mode graded index fiber is 50 माइक्रोमीटर, जो मैंने आपको बताया है 62.5. बस इसमें ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका जो N1 यानी जो आपका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है. Now we will see the profile parameter. Profile parameter determines the shape of the core refractive index. As the value A increases, the shape of the core profile changes. Like if the value of A is 1, it will be triangle kind of shape, and if A equal to 2, it's kind of oval shape. A equal to 10, जैसे जैसे आप A को बढ़ाते जाएंगे ये आपका शेप चेंज होता जाएगा. इन्फिनिटी पर ये एग्जैक्टली मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर बन जाएगा. Now the refractive index gradually decreases from its axis radially outward and become equal to refractive index of cladding at the core cladding interface, that is graded index fiber. Refractive index of core and cladding remains uniform. Dimension of the core cladding are similar to the step index multi-mode fiber. There are some points for a graded index fiber. Bandwidth is 100 to 370 megahertz, less dispersion as compared to multi-mode step index fiber. प्लीज़ कीप इन माइंड, यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में डिस्पर्जन ज़्यादा होता है या मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में डिस्पर्जन ज़्यादा होता है. तो सबसे ज़्यादा मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में होता है, फिर आपका ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में होता है. फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल डेटा रेट इज़ हाई. वहाँ सिग्नल में आपको डेटा रेट लो मिल रहा था, यहाँ पर डेटा रेट आपका हाई है. फैब्रिकेशन डिफ़िकल्ट है यहाँ पर, वहाँ पर फैब्रिकेशन ईजी था. कॉस्ट इज़ हाई कंपेयर टू मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर. सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में आपकी जो कोर की साइज़ है कंपेरेटिवली स्मॉल है. आपने अभी मल्टी मोड में देखा था तो कोर की साइज़ बड़ी थी, तो यहाँ पर जो आपका कोर की साइज़ है वो 8 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर के बीच में है. कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट. सिंगल मोड फाइबर कट ऑफ वेवलेंथ इज द स्मॉलेस्ट ऑपरेटिंग वेवलेंथ, जिसको हम LMDA भी बोलते हैं, वेयर द सिंगल मोड फाइबर प्रोपोगेट ओनली फॉर द फंडामेंटल मोड. सिंगल मोड में सिर्फ एक ही मोड एग्जिस्ट करता है, दैट इज फंडामेंटल मोड. एट दिस वेवलेंथ द सेकेंड ऑर्डर मोड बिकम लॉसी, रेडिएट्स आउट ऑफ द फाइबर कोर. सिंगल मोड फाइबर हैव अ लोअर अटेन्यूएशन, हायर बैंडविड्थ प्रॉपर्टीज. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगल मोड फाइबर हैव अ हायर बैंडविड्थ प्रॉपर्टीज. प्रेजेंट एप्लीकेशन फॉर अ सिंगल मोड फाइबर इंक्लूड लॉन्ग हॉल हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. वेपर फेस ऑक्सीडेशन एंड डायरेक्ट मेल्ट प्रोसेस आर द टू मेथड फॉर फैब्रिकेटिंग मल्टी मोड एंड सिंगल मोड फाइबर्स. So mostly you will have to consider single mode means single mode step index fiber. So there is some formula, because this formula will help you to discriminate between the single mode and a multi mode fiber. Normalized frequency का formula जो आपका होता है 2 pi NA √2
डेल्टा अपॉन लैम्डा, वी सी दैट इज अगेन अ क्रिटिकल नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला आपका ये होता है। उसके बाद से आपका आता है नंबर ऑफ मोड्स, जिसका फॉर्मूला है v²/2। अगर आपका सिंगल मोड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपका ये नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी है वो आपकी लेस देन 2.405 होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी वैल्यू है आपकी ज़ीरो से आपकी जो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू 2.405, ये आपकी सिंगल मोड फाइबर की कंडीशन भी कह सकते हैं कि नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी आपकी कम होनी चाहिए 2.405 से। वी ट्रांसमिट ओनली वन मोड थ्रू दिस फाइबर, नो डिस्पर्जन इफेक्ट। जब हम एक ही मोड को ट्रांसफर करेंगे तो डिस्पर्जन कम होता है, हायर बैंडविड्थ एंड वी यूज़ फॉर अ लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन। फैब्रिकेशन इसकी डिफ़िकल्ट इसलिए है बिकॉज इसकी जो कोर साइज़ होती है वो बहुत स्मॉल होती है, इस वजह से हम इसका फैब्रिकेशन में बहुत मुश्किल होती है हमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन 2019 हैज़ बीन आस्क्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन डज नॉट फिट फॉर अ सिंगल मोड फाइबर, अ बैंडविड्थ इज 1 गीगाहर्ट्ज़ पर किलोमीटर। अगर मैं आपसे बात करूं सिंगल मोड फाइबर की, जो मैंने आपसे बताया है कि सिंगल मोड फाइबर की जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत ही हायर होती है, यानी हायर बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है, यानी जो आपकी बैंडविड्थ होती है ये मोर देन यानी 50 गीगाहर्ट्ज़ पर किलोमीटर या इससे ज़्यादा होती है, 50 to 100 गीगाहर्ट्ज़ पर किलोमीटर होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जा रहा है आपका। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। द डिजिटल कम्युनिकेशन रेट इज एग्जिस्ट 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, राइट है। मोर देन 10,000 वॉइस चैनल्स आर अवेलेबल। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी मोड फील्ड डायमीटर इज लार्जर देन कोर डायमीटर, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ आपका गलत है। सेकंड में बात करती हूँ द सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर हैज अ बिट लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एट 1300 नैनोमीटर, द वैल्यू ऑफ बाईफ्रिंज विल बी। तो आप इसका फॉर्मूला होता है कि L/λ, इसको मैं आगे बताऊंगी बाईफ्रिंजेस के बारे में, फॉर्मूले में मैंने यही डाल दिया, इससे आपको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्टेप इंडेक्स मोनोमोड फाइबर ऑप्टिकल केबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप इंडेक्स मोनोमोड का क्या क्या आपके एडवांटेजेस है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज सिंपल, अभी मैंने आपको बताया है जस्ट कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है आपकी वो डिफिकल्ट होती है। तो देखिए सीधे कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाएगा। बैंडविड्थ ऑफ द सेवरल गीगाहर्ट्ज़ किलोमीटर इज पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है, 1 गीगाहर्ट्ज़ नहीं सेवरल गीगाहर्ट्ज़ किलोमीटर इज पॉसिबल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्प्लाइसिंग ईजियर नहीं होती है। वैसे भी अगर आप ये देखिए कि अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया है तो ए एंड डी तो ऐसे ही क्रॉस कट जाएगा, 3 ओनली हो नहीं सकता क्योंकि आपको पता है कि बी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यानी बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2020 का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइबर सफर्स विद द मॉडल डिस्पर्जन। अभी मैंने बताया है कि डिस्पर्जन के लिए आपको मल्टी मोड आपका जो स्टेप इंडेक्स फाइबर है उसी में आपका सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सी। तो देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो से ही आप सारे ऑप्टिकल के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यूएशन में ज़रूर सुनिएगा और इस वीडियो को समझने के लिए आप इसको दोबारा ज़रूर सुनिएगा, तो इससे आपकी क्लैरिटी इस सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा अच्छी होगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस को बनाने का। थैंक यू।